Before I tell you the right method to study union budget for UPSC exam, watch this video to know what Shakti Dubey ma'am says about reading economic survey and union budget. You might have heard about economic survey and budget. Now in economic survey and budget, every sector, be it social sector, be it economic sector, everything is touched by the government. They will talk about agriculture, they'll talk about youth, they'll talk about women, they'll talk about disaster management, they will talk about defense. So if we start from GS paper 1 to GS paper 3, every single UPSC syllabus ka topic is being covered in the budget as well as your economic survey. So why don't you make it a single source to pick up the current affairs? Economic survey में government will tell उन्होंने क्या किया है पिछले साल, और budget में वो बताएंगे कि what they want to do in the upcoming year. So you have what is done, and you also have a way forward for everything. So please use the government documents to the best, मतलब how much ever you can extract from that, it should be. Pick up, if suppose now आप लोगों ने relate किया होगा economic survey और budget को with economics. We always study it as a part of economics. Am I right? But then in GS paper 1, do we have society? In society, do we have something called as caste census? Caste system. Caste census was there in the news. Can we relate it? Women organization, role of women and all is there in the question. Women का health, education, digital literacy, हर चीज का data budget में होगा, economic survey में होगा, schemes होंगी government की. Can't we pick up the data from there for GS paper 1? We can. Can we do it for governance? E-governance is a topic. Digital initiatives by government will be there in the budget. Can't we use it in e-governance? Yes, we can. You can use it very properly even in ethics. ठीक है? So be very open with economic survey and budget, and this is an authentic source which can be quoted literally everywhere. कि वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता लग गया होगा कि हमें ओरिजिनल 400 पेजेस का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है बजट का. इफ़ यू आर डूइंग दिस, प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम. सो इंस्टेड व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू फॉलो द जिस्ट रूल. इसके अंदर 2 स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेप 1 इज सोर्स लिमिटेशन. अब हमें 100% अपना 400-500 पेजेस का बजट पढ़ने से अच्छा है उसका 10% में ही अच्छे से जिस्ट निकाल लो उसका. इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किसी भी कोचिंग, लाइक इवन इट्स वाजीराम, वेदर इट्स विजन IAS और फोरम, हमें किसी भी कोचिंग की कंपाइलेशन डाउनलोड कर लेना है एंड उसको ट्रस्ट करना है. मतलब ये नहीं है कि आप तीनों कोचिंग्स ही कंपेयर करने बैठ गए कि किसने अच्छा एलैबोरेट करा है. सो डोंट डू दिस. फॉलो वन कोचिंग्स कंपाइलेशन बट फॉलो इट विथ ट्रू हार्ट. एंड या इसको आने में 3-4 दिन लगेंगे अभी अच्छे मटेरियल को बनने में. तो लेट द एक्सपर्ट्स डू योर वर्क. सो सेकेंड ऑफ ऑल, हमें फिनेंस मिनिस्टर की स्पीच का टेक्स्ट डाउनलोड करना है. अब ये क्यों करना है? तो इसमें स्पीच जब देते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, तो वो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं. जस्ट फॉर द एग्जांपल, अमृतकाल, ग्रीन ग्रोथ. तो ये कुछ कीवर्ड्स हो जाते हैं जो हमें मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं. जैसे हमारा मेंस आंसर राइटिंग मतलब की पॉइंट्स होते हैं ना कुछ, जो आंसर को इफेक्टिव बनाते हैं प्लस इम्प्रेसिव बनाते हैं. एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आंसर में ऐसे वर्ड्स यूज़ करें. तो मेक श्योर कि ये 2 स्टेप्स आप फर्स्ट ऑफ ऑल कर लें. पहला तो कंपाइलेशन डाउनलोड करना है, सेकंड ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द एग्जैक्ट स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर. एंड नाउ हाउ वी एक्चुअली गोना रीड इट. we have to wear 2 different hats. That means for prelims we have to focus on 3 D's. That means data, definition and doles. अब लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. डेटा मतलब जैसे फिजिकल डेफिशिट अगर की हम बात करें कि इज़ इट हायर और लोअर देन लास्ट ईयर, तो ये हमें कंपैरिजन रखना है कि कितना था और कितना अब है. एंड देन डेफिनेशन के अंदर जस्ट लाइक अगर ग्रीन क्रेडिट एक वर्ड यूज़ हुआ तो इमीडिएटली गूगल इट, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना आती हैं प्रीलिम्स में, तो मेक श्योर कि आपको पता हो. फिर डोल्स में मीनिंग स्कीम्स हम देखेंगे एंड हु इज़ द बेनिफिशियरी एंड व्हाट्स द एलोकेशन. तो ये सब हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है बजट के अंदर. सिमिलरली फॉर मेंस वी हैव टू फोकस ऑन 3 T's. फर्स्ट ऑफ ऑल, थीम, ट्रेंड्स एंड टर्म्स. तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू.
थीम के अंदर लाइक इज इट इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइक डज द बजट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर मोर और इज इट सोशल जस्टिस। एंड फिर हम देखेंगे ट्रेंड्स के अंदर, डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेटा फॉर मेंस बट जस्ट रिमेंबर कि इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स से, तो थोड़ा सा कंपैरिजन इसमें देखना है। फिर फॉर द टर्म्स, जैसे कुछ टर्म्स होते हैं जैसे इकोनॉमी ड्रिवन ग्रोथ, तो इसमें आप अपने जो मेंस GS3 का पेपर होता है ना मेंस का, उसके अंदर इंट्रो पार्ट में ऐसे टर्म्स को यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं एग्जामिनर के लिए। सो मेक श्योर कि आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एनालाइज करें। द लास्ट पॉइंट विल बी कि हाउ विल यू ऑर्गेनाइज। तो हमें एक अलग से नोटबुक नहीं बनानी है बजट की, बिल्कुल भी नहीं बनानी है, क्योंकि उसे बर्डन नहीं लेना है हमको। जो हमारे ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, जस्ट लाइक कि बजट में रेलवे के लिए कुछ बताया गया, तो जस्ट इंक्लूडेड इन द नोट्स ऑफ GS3 में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो भी आपके नोट्स होंगे उसमें आप इन्हें इंक्लूड कर लो। तो दिस विल डिक्रीज योर बर्डन, क्योंकि एक्स्ट्रा नोटबुक बनाएंगे तो हमें पहले ही इतने ही सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं होता है, उसको करने बैठेंगे तो फिर मतलब एक अलग से बर्डन होता है दिमाग में। तो मेक श्योर कि आप उसी के साथ इसे इंक्लूड करें, सो दैट आप जब GS3 का इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे तो बजट के पॉइंट्स साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे। जैसे अगर ट्राइबल वेलफेयर की बात आई तो उसे आप GS2 सोशल जस्टिस में डाल सकते हैं। एंड दैट्स ऑल हाउ यू कैन efficiently read budget. I hope you guys found all of that useful, and make sure to subscribe our channel for more UPSC content, and meet you in the next video. Thanks for watching.